हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। इज मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। The universal franchise is enable all the citizens to be involved in the governance of their state. They do so they are elected their representative and who govern to the serve and protect the interests of the people. There are two main methods of electing representatives, and these are known as territory and functional representation. The first year territory representation. This is the most is a method of electing to representative in the most of democratic country. In this system, all the eligible voters living in the specified area and voted to the elected their representatives. The total electorate of the country is irrespective of there is a professions or groups is divided into the territory continues and which they elect on are more representative, and the entire population is derived into the constituency with the more and less equal number of voters. The next is the function representation. The function representation means the representative are elected by the various professional and functional group like industry worker, trading is a functionaries, medical practitioners and lawyer, teacher, transporter, etc. According to this method, is a separate is a constituency are there set of the people or belonging to the specific group. For example, there may be a constituency of the teacher who is elected their representative. The electorate of the professionally and the functionally categorized, and each of professional categories is called upon to elect one or more representatives respectives on their place of residence in a country. Unlike the territorial representation, the electorate is not be divided on the basis of the territory is a constituency but is the base of their professions. It is a chain or representation of various occupational group. The next is a constituency. A body of voters who is elected to represent is known as the constituency. The body of voters may be belong to the particular geographical area. The constituency is for the Lok Sabha and the assembly election consist of the voter of is a respective area. But the constituency for their election of President of Indian consists of member of parliament in the state assembly. There may be single member constituency or a multi-member constituency. A single member constituency here, when only one member is elected from to the constituency, it is known as a single member constituency. For Lok Sabha election for the whole of India is divided into 543 single member constituency. There is a most important point here. Note down the Lok Sabha election to the whole of India divided into the 543. Here is the single member constituency, and out of this 543 constituency, every state and union territory has a share of the content member of constituency. The system of single member of constituency is adopted in India, Britain, USA, Canada, Russia, Australia, Nepal and Pakistan also. The next year, multi-member constituency. This system is known as the general ticket system. When more than one candidate are selected from the constituency, it is called multi-member constituency. Such a constituency is exit of Switzerland, Denmark, and Sweden and Italy. Is according to this system, the whole country divided into the large constituency and form of each constituency may be represented or elected. The political party get the seat in the proportion to be the votes their school of the constituency. And in multi-member constituency, usually the method of proportional of representation is adopted for a begin to elected, and candidate has to be achieve a fixed quota of votes. The votes have to be voted for any representative as are there be selected from their respective constituency that indicate their order of performance against the name of the candidate, and will be discuss the detail of their method when we study of proportionally representation. The people here
and therefore exercise their right to vote according to the electoral system adopted to their respective countries, which shall discuss below the most important system. यहाँ जो हमारे समक्ष आया है इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रतिनिधित्व की प्रणाली। आखिर प्रतिनिधित्व की प्रणाली होती क्या है और इसका क्या है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार में इसका स्थान। तो कहते हैं ये बहुत बात जो जानना बहुत काफ़ी रोचक रहेगा और समझ भी रहेगी कि आखिर प्रतिनिधित्व की प्रणाली क्या हमें बताने की कोशिश करता है। अगर यदि हम बात करें सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, कहते हैं सभी नागरिकों को उनके राज्य के शासन में शामिल होने का अवसर देता है और वो अपना प्रतिनिधित्व भी चुनते हैं जो इन लोगों के अधिकार की रक्षा भी करते हैं। यानी कोई भी प्रतिनिधित्व अगर आप चुनते हो तो उसका एक ही कर्तव्य होता है कि वो नागरिकों का जो है अधिकार को जो है सुरक्षित मुहैया कराए। प्रतिनिधित्व के चुनाव के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं क्षेत्रीय और एक होते हैं कार्यकारी प्रतिनिधित्व। यानी दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ मान्यता रखता है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तो ये बात साफ जाहिर हो जाता है कि अधिकांश जो है लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधित्व चुनने का ये सबसे लोकप्रिय तरीका माना गया है और इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के विशेष के मतदाता अपने प्रतिनिधित्व चुनने के लिए मत भी डाल सकते हैं। निर्वाचन के लिए जो है संपूर्ण देश को क्षेत्रीय इकाई में बांटा भी जा सकता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को एक प्रतिनिधित्व भी चुना जा सकता है। संपूर्ण जनसंख्या को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है जिसमें लगभग बराबर मतदाता होते हैं। तो ये इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि संपूर्ण जनसंख्या के निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है जिसमें लगभग बराबर मतदाता होते हैं। यहाँ जो अगला टॉपिक है कार्यकारी प्रतिनिधित्व, देखिए इसमें यही बात सामने आता है कि कार्यकारी प्रतिनिधित्व होती क्या है और उसका क्या अर्थ होता है। तो साधारण शब्दों में जानना चाहेंगे तो इसका यही मतलब होता है, कार्यकारी प्रतिनिधित्व का अर्थ यही निकलता है कि विभिन्न व्यावसायिक समूह के प्रतिनिधित्वों का चुनाव, जैसे कि औद्योगिक कर्मचारी हो गया, व्यापार जगत हो गया, वकील हो गया, अध्यापक हो गया, ट्रांसपोर्ट आदि। इस प्रकार जो है वर्ग विशेष से संबंधित लोगों के अलग अलग विविध इकाई बनाई जाती है। उदाहरणतः अध्यापकों का एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है जो अपना प्रतिनिधि चुनते हों। निर्वाचन क्षेत्र के जो है व्यवसाय और कार्य के आधार पर वर्गीकृत करके उनका जो है प्रतिनिधित्व चुनने को भी कहा जा सकता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कई तरह निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर नहीं बल्कि उसके व्यवसाय पर निर्भर करता है और यह एक ऐसा तरीका माना जाता है जिसके द्वारा विभिन्न व्यवसायिक समूहों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होती है। निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं का वह समूह है जो प्रतिनिधित्व के चुनता है और यह समूह किसी विशेष जो है भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित भी हो सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव में उन्हीं क्षेत्रों को मतदाता शामिल होते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में संसदों और विधानसभाओं में सदस्यों के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे समक्ष यही आता है कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, जब किसी क्षेत्र से केवल एक सदस्य का चुनाव किया जाए तो उसे एक सदस्य कहते हैं। यानी लोकसभा चुनाव में संपूर्ण भारत को जो है 543 इकाई में बांटा गया है और इन 543 क्षेत्रों में से प्रत्येक राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में निश्चित इकाई होती है और एक सदस्यीय विधायक इकाई की प्रणाली को भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान में अपनाया गया है। यानी देखा जाए तो एक सदस्य पर निर्वाचन प्रणाली जो है कई देशों में अपनाया गया है, इवन कि भारत में भी इसको अपनाया गया है। उसके पश्चात बहुदलीय निर्वाचन क्षेत्र, देखिए इसका क्या अर्थ हुआ। इस प्रणाली के सामान्य टिकट प्रणाली भी कहते हैं। जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सदस्य चुने जाते हैं उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है और इस प्रकार की प्रणाली स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और इटली में अपनाई गई है। इस प्रणाली में संपूर्ण देश को विशाल निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है और प्रत्येक इकाई से कई प्रतिनिधित्व को चुन लिया जाता है। राजनीतिक दलों को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त मतों के आधार पर सीटें मिलती है। कहते हैं बहुसदस्यीय प्रणाली में अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है और निर्वाचन होने के लिए प्रत्याशी का निर्धारण मत प्राप्त करने होते हैं। मतदाताओं को उनके क्षेत्र से चुने जाने वाले सभी प्रत्याशी के लिए मत देने होते हैं। प्रत्याशी के नाम के आगे वे अपना मत अंकित करते हैं और इस तरीकों का जो है व्यापक अध्ययन आप जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले अध्ययन में करेंगे। इस प्रकार किसी देश में प्रचलित निर्वाचित प्रणाली के अनुसार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं।
अब हम निर्वाचन संबंधी मुख्य प्रणालियों का यहाँ पर अध्ययन करने की कोशिश करेंगे।